Hello student, hope you are doing good. Everything is fine over there. So in the last class or you can say in the last video I have taught you the numericals of multiplier. So we will continue in this video as well. So now we will do example number 17. Although I just taught about till example 8, but if you will do this question, you can easily compute your answer because this absolutely depend or stick to the same concept which we have already done. So even I thought to do one more question with you people. So in this question you will understand that so many concepts will come. Fine. So if increase in of rupees 250 crore in investment, when we know that increase, that is delta, investment means I, so this is given what? Delta I. In an economy result in total increase in income, again total increase in income, if income is increasing, that is delta means change, so delta Y is given. So both what we have given delta I, that is investment of rupees how much? 250 crore. हमें डेल्टा वाई गिवन है बिल्कुल, रुपीज हाउ मच? 1000 करोड़. सो ये दो इंफॉर्मेशन तो हमें गिवन है ही है, बिल्कुल. इतना आया समझ में? नाउ कैलकुलेट द फॉलोइंग. कैलकुलेट द फॉलोइंग. व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग. एमपीसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, चेंज इन सेविंग, चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन मल्टीप्लायर. ओके, तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं. फाइंड एमपीसी यू नीड टू कैलकुलेट. चेंज इन सी आपको कैलकुलेट करना है, इसी को बोलते हैं चेंज इन कंजप्शन. चेंज इन एस यू हैव टू कैलकुलेट करना है, इसी को बोलते हैं चेंज इन सेविंग. और आपको कैलकुलेट करना है के. के स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लायर. नाउ विद द अबव इंफॉर्मेशन जस्ट थिंक अबाउट विच फॉर्मूला इज एप्लीकेबल और सूटेबल ओवर हियर. सो नाउ पॉज करके बेटा सोचना वीडियो को. नाउ आपको फॉर्मूला स्ट्राइक किया होगा दिमाग में कि के इज इक्वल टू डेल्टा y upon delta I. I taught you in the class. First you will open the door. If someone asks yes, you will ask why, and he tells about the same reason ki this is the reason, and you satisfy with this and you will allow him or her delta I you came in. So y or I, is it clear? So this both components given to us, and this is how we'll able to compute the value of multiplier. Multiplier is what? K is denoted by K. So just plot the value, put the value in the formula. So k is equal to what? k is 4. आ गया ना, ये 4 से चला जाएगा, 4 वैल्यू आ गई, बड़ा इजी है. तो दिस इज व्हाट वी हैव डन. फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? वर्ल्ड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. फर्दर बेटा कभी भी दिमाग में हर वक्त याद रखना कि व्हेन वी हैव वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर वी कैन इजीली कंप्यूट एमपीसी एंड एमपीएस वेरी इजीली. हाउ? जस्ट अप्लाई वन मोर फॉर्मूला हियर, 1/1 माइनस एमपीसी. सही. You don't know even what is the value of MPC. Now how we'll compute it? We know that the value of multiplier is 4. Plot the value, replace k with 4. 4 is equal to 1/1 minus MPC, right? Replace this 1 minus MPC over here and 4 here. Is it clear? So this will be, now what you will do, it will be like 1 minus MPC is equal to 1 by 4, है ना? Now we know that what is the value of 1 by 4 is 0.5. So we will write 1, this is equal to what? 0.25, right? Now this 1 will be take this side. So what will be the value become? Minus MPC is equal to this माइनस, जब हम उसको is equal to के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? अभी प्लस है माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0.25 माइनस 1 माइनस 0.75, है ना? तो व्हाट? माइनस एमपीसी इज इक्वल टू माइनस 0.75. माइनस माइनस विल कैंसिल ऑफ. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी? एमपीसी इज इक्वल टू 0.75 इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी. बुक में डायरेक्ट दे रखी है, आई हैव कंप्यूटेड ओवर हियर. इज इट क्लियर? चलिए हमने एमपीसी की भी वैल्यू निकाल ली है. जब वी हैव वैल्यू ऑफ एमपीसी, नाउ इफ यू पीपल रिमेंबर माई अर्ली वीडियोज, I taught you what is the formula of MPC. Pause the video and please try to think about it. Delta C upon delta Y is the formula. Delta C upon delta Y. Now, we have this delta C. No, this is what is known as change in consumption. Fine. What is delta Y is known as change in income.
and this is marginal propensity to consume. We need to calculate MPC. If anything is given this in this, yes, we have given delta y, right? In the beginning of the question I taught you that with the what we have given delta y, apply it, use it. We have computed MPC value, yes, हो गया सॉल्व. MPC की वैल्यू कितनी थी 0.75 इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. रिप्लेस दिस डेल्टा वाई विद रुपीज 1000 इंटू इज दिस 0.75, तो वी विल राइट डेल्टा सी इज इक्वल टू, इनको इंटू कर दीजिए, कितना आएगा रुपीज 750 करोड़. एंड नाउ व्हाट इज दिस डेल्टा सी इज नोन एज चेंज इन व्हाट, कंजप्शन इटसेल्फ. कितना आया बेटा रुपीज 750 करोड़. When we know that this is consumption, that means with the change in income we are consuming 750 rupees. Now what is the change in income? rupees 1000 rupees change जब हुए थे इनकम में, आपने उनसे चेंज कंजप्शन 750 करा था, तो डेल्टा एस निकल सकता है. बिल्कुल. सेविंग कैसे निकलेगी? इनकम में से कंजप्शन को, जो चेंज कंजप्शन है उनको माइनस कर दो. सो आपके पास डेल्टा एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000 minus 750 करोड़. योर डेल्टा एस हेंस विच इज नोन एज चेंज इन सेविंग रुपीज 250 करोड़. आपने एक ये निकाल लिया फर्स्ट पार्ट, आपने एक और ये निकाल लिया चेंज इन कंजप्शन सेकंड, आपने यहाँ पे एमपीसी की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ पे आपने की वैल्यू निकाल ली. फोर पार्ट्स कर दिए, एंड हियर वी आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर हाउ यू एबल टू कंप्यूट दिस? जस्ट यू नो द फॉर्मूलाज, दैट्स इट. Fine. The next part we will going to discuss is related to practicals on determination of equilibrium level. On which equilibrium level? You student very well aware about what is equilibrium level. We have two conditions of equilibrium level. What are the two conditions? Because I have taught you the two approaches of equilibrium level. Right? You people aware about it. What are the two approaches? Yes. AD is equal to AS. By first condition is AD is equal to AS. Now what is AD? So how we will write C plus I? Yes. What is A? What is C? AS. We can replace by Y, because AS is known as, other name is income, national income, or we know that income may be written, income may be consumed or saved. So this formula may write it like this as well, C plus I. Right? So this formula maybe you will write only Y, or sometimes C plus I is equal to C plus S. है ना? When we in a common CC is common, we cancel it. Now another approach of equilibrium will determine from here, that is investment is equal to saving, which is known as I is equal to S or S is equal to Y. हमने ऐसे compute किया. So they both are the two conditions. They are the two conditions at a equilibrium point. Fine. Now this is what we need to compute. One of the important numericals of this concepts are. So let's do it. This is very easy, just go through it. Right now I'll come up with the numericals, main portion of it. CBSE 2009 question is asked in question number CBSE 2009 example 24. Now how you need to compute it? Given consumption function you are aware about it. I taught you consumption and saving function. C, where C is autonomous and this is induce में MPC आती है यहाँ पे. फाइन. अगर आपको लास्ट वीडियो देखी हो तो ये आपको पता होगा हाउ यू विल रीड इट, दैट सी इज इक्वल टू, कंजप्शन के दो पार्ट होते हैं, एक ऑटोनॉमस और एक इंड्यूस. सो ऑटोनॉमस इज रिमेन फिक्स एंड इंड्यूस इज डिपेंड अपॉन द एमपीसी वैल्यू विद चेंज इन इनकम. सो दैट दिस 0.75 इज व्हाट, दिस इज एमपीसी गिवन. फाइन. सो हियर इट इज सी, नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट आई आपको गिवन है. कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम. अरे बहुत आसान है, आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कंप्यूट करना है तो आप सीधा लिखिए कंडीशन. आपको अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ये है, इक्विलिब्रियम लेवल. चलिए आ जाइए, देखिए इक्विलिब्रियम लेवल कैसे आएगी. क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 24 इक्विलिब्रियम लेवल क्या आती है हमें पता है. AD is equal to AS. We can write this. Of course we can write this. AS can be replaced by Y. AD का फॉर्मूला बताओ. C plus I. C का क्या होता है? कंजप्शन फंक्शन है ना, or this is investment. Write this consumption function which is given you. This is given na C. So replace this C. What are the information given in the question? So Y will remain Y. C is replaced by 100 plus 0.75Y. And what is the value of I?
This is investment. It is given. Yes, it is given 1,000 crore. Just plot the value plus 1,000 crore. Is it clear? Now this 100 and this 100 are constant value. 100 plus 1,000 is 1,100, but you cannot plus this or add this in value. Fine. Now this is y, 0.75y. When we know that this is a variable, it values is 1. याद रखना ये वैल्यू है 1. 0.75 को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो 1 में से माइनस हो जाएगा. सो बिल्कुल वी कैन राइट दिस y माइनस 0.75y. y मीन्स 1. यहाँ पे 1 लिख दीजिए आज. 1 इज इक्वल टू 1100. अब देखो 1100 कैसा आया. 100 प्लस 1000 इज 1100. फाइन. अब 1 में से 0.75 y माइनस करोगे तो इट विल रिमेन विद 0.25 y. बिल्कुल सही. 1100. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज 0.25 y. अब नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज y को यहीं रखिए, इस 0.25 को नीचे ले जाइए. तो y इज इक्वल टू 1100 अपॉन 0.25y. है ना. बिल्कुल. y तो बेटा हमारा यहीं रह गया, नीचे नहीं आया. y तो हमने यहीं रखा ना. y को यहीं ले जाइए, 0.25 को नीचे ले जाइए, यहाँ ले गए. आज आपको वैल्यूज़ क्या करनी है, हटानी है. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड ऑन कर दो 2 zeros, है ना. और 25 से क्या कर दोगे, काट दो. आपकी y की वैल्यू आ जाएगी. कैलकुलेट कर देना बेटा. y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 44. फाइन. सो दिस इज व्हाट इनकम. दिस इज व्हाट इनकम. क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा था हमसे, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम. सो हमारी एट पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम लेवल पे इतना. कंजप्शन फंक्शन के अंदर अब आपको कंजप्शन फंक्शन एट दिस इक्विलिब्रियम लेवल, कभी भी ऐसे लिखा हो ना कंजप्शन फंक्शन बताइए इस इक्विलिब्रियम लेवल पे, ये जो आंसर आया था ना, इस y को रिप्लेस करके ना, इस y को रिप्लेस करके वैल्यू प्लॉट कर देना. इस y को रिप्लेस करके वैल्यू. अब आपको पता है कंजप्शन फंक्शन क्या होता है. लिखिए c इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस बी वाई, है ना. बी वाई ये गिवन है. अब आप देखो c को क्या कितना लिख सकते हैं हम भाई, ये वाला c बार ऑटोनोमस को 100 गिवन है बिल्कुल. b इज व्हाट, MPC इज गिवन इन 0.75 प्लॉट एट 0.75. y की वैल्यू गिवन नहीं थी बट कंप्यूट करी ना अभी हमने ऊपर, कितना 4400. ठीक है. नाउ इसको जब आप इससे इंटू करोगे आपका आंसर आ जाएगा 3300. वैसे ही पता लग रहा है ये थर्ड पार्ट है किस चीज़ के, इंटू 3. जब आप इसको इंटू करोगे तो कितना आएगा, c प्लस यहाँ पे कितना 100 प्लस ये कितना आएगा 3300. तो कंजप्शन कितनी निकली 3400 करोड़. इनकम कितनी थी, इतनी. अब आप देखो चेंज इनकम हमारी भाई साहब इतनी आ रही है इकोनॉमी के अंदर, है ना. उसके बाद आपका कंजप्शन कितना आ रहा है, इतना. कंजप्शन कितना आ रहा है, इतना. अब आपको कभी भी बोले सेविंग निकालनी है ना, सेविंग, तो इसमें से यानी कि इनकम में से कंजप्शन माइनस कर देना, आपकी सेविंग आ जाएगी. फाइन, वो सेविंग निकल जाएगी. बट दिस क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग फॉर दिस, सो अभी करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. देखिए आगे जैसे क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 25 है. एग्जांपल है ना, इकोनॉमिक कंजप्शन फंक्शन गिवन है आपको, सी वाई इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है और आपको इसके अंदर बहुत ही आसान है, इक्विलिब्रियम लेवल कंप्यूट करना है. तो अब आपको पता है y इज इक्वल टू सी प्लस आई, वही बेटा वही वैल्यू प्लॉट कर दी, सब चीज़ गिवन थी आपको, है ना. जब आपको निकाला तो y की वैल्यू कितना है 2200 और इसको उसी कंजप्शन फंक्शन में प्लॉट करा, आपका क्या आ गया, c की वैल्यू आ गई. बिल्कुल सेम एज अबव क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं. और 2010 का पेपर है, वो 2009 के क्वेश्चन में था. नाउ अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन कराते हैं. एग्जाम्पल 26 इज अ सेविंग फंक्शन. जब भी सेविंग फंक्शन होता है तो जितना ये नेगेटिव जाता है उतनी ऑटोनोमस कंजप्शन होती है भाई. ठीक है. यहाँ पे आज सेविंग के अंदर आप बताओ सेविंग का क्या होता है. कभी सेव क्या MPC से सेव कर सकते हो क्या, नहीं. MPS से ही है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी, ये MPS गिवन है. सो दिस इज व्हाट गिवन, MPS. फाइन. इन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल इज एट, आज आपको क्या दे दिया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम गिवन है. अच्छी बात है, आपको y गिवन है ऑलरेडी. ठीक है. अब आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कंप्यूट करनी है. कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी. इन्वेस्टमेंट एट इक्विलिब्रियम लेवल, वी नो दैट इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या वैल्यू प्लॉट करनी है. ऑटोनोमस कंजप्शन बिल्कुल निकाल देंगे, ऑटोनोमस कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दैट इज वैल्यू ऑफ K. ओके. देखिए फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 26 आई एम डूइंग. हमने जिनसे बोला, इनने बोला है कि हम एक सबसे पहले ये निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इक्विलिब्रियम लेवल. What we have given S, we know that one approach which is known as S equal to I, है ना. यानी कि सेविंग मस्ट बी इक्वल टू I. अगर हम सेविंग को ही कंप्यूट कर लें, सेविंग के भी दो पार्ट हैं, ऑटोनोमस और एक इंड्यूस.
अगर हम उसको ही कंप्यूट कर लें तो दैट वैल्यू विल बी इक्विवेलेंट विद आई इन्वेस्टमेंट, यस। सो आज सेविंग फंक्शन को प्लॉट किया जाए। सेविंग फंक्शन इज गिवन एस इज इक्वल टू -200 प्लस 0.25y। तो एस इज इक्वल टू -200 प्लस 0.25y. This is the value of saving function is given in the question. Well given. Now what we need to do is, and even in fact हमें income भी given है. In fact they have given as an income 2000 crore. कुछ नहीं करना. We know that y is known as income. Plot the value. Replace this y with that 2000 crore. So s is equal to -200. This is autonomous plus this is induced 0.25. कितना था? 2000 करोड़. 1/4 निकाल लो, 500 आएगा. s इज इक्वल टू -200 प्लस ये 500 आएगा. आंसर कितना आ जाएगा? s इज इक्वल टू +300. प्लस की वैल्यू ज़्यादा है ना माइनस से. सो -200 प्लस 500 द आंसर विल बी सेविंग कितनी? 300. एज वी नो दैट एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो यहाँ पे आप लिख दोगे एज वी नो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट is at s is equal to I. So value of s तो both same होगी ना. So here hence investment will be how much? 300 crore. Is it fine? So हमने क्या करा? इन्वेस्टमेंट तो निकाल लिया. उसके बाद आपको निकालना था ऑटोनोमस. वी हैव टू ऑटोनोमस कंजप्शन. एज आई टोल्ड यू, जितना ही नेगेटिव में आपका कंजप्शन फंक्शन होता है उतनी ही आपकी ऑटोनोमस नेगेटिव सेविंग होती है, उतनी ही ऑटोनोमस कंजप्शन होती है. तो सिंपल सी बात है, ऑटोनोमस कंजप्शन कितनी हो जाएगी? ऑटोनोमस कंजप्शन इज इक्वल टू ₹200 करोड़. खत्म बात. एज सिंपल एज स्ट्रेट एज दिस. कितना आएगा? तो ये भी हो गया. ये दिस इज व्हाट नोन एज ऑटोनोमस कंजप्शन. जितना सेविंग फंक्शन में जितना ही नेगेटिव होता है उतना ही ऑटोनोमस कंजप्शन पॉजिटिव में होता है. फाइन. सो हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए इसके. इसके बाद आपको कंप्यूट करना है लास्ट पार्ट आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. तो बड़ा आसान होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती. आप सबसे पहले कोशिश ये करना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एमपीसी की वैल्यू निकाला, एमपीएस की वैल्यू निकालो. दे हैव गिवन यू दिस 0.25 इज द वैल्यू ऑफ एमपीएस इटसेल्फ. बिकॉज कभी भी सेविंग फंक्शन गिवन होता है तो एमपीएस होता है, और कभी भी कंजप्शन फंक्शन गिवन होता है तो दिस विल बी नोन एज एमपीसी. बट यहाँ पे आज आपको क्या गिवन है? तो एमपीएस मैं लिख सकता हूँ कि 0.25 इज गिवन. फॉर्मूला पता है आपको? k इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला था बिल्कुल, k इज इक्वल टू 1/MPS डायरेक्ट, है ना? ये फॉर्मूला होता है ना बिल्कुल. आप k इज इक्वल टू 1/0.25 लिख सकते हैं बिल्कुल. आप यहाँ पे इधर लगा दीजिए तो वैल्यू ऑफ k कितनी आ जाएगी? 4. हो गया सॉल्व. k की वैल्यू कितनी आ गई? k इज व्हाट? मल्टीप्लायर 4. क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं. हमने कितना निकाला था? 300 इनकम, ऑटोनोमस कंजप्शन 200 एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4. दिस इज हाउ वी नीड टू डू इट. फाइन. In the saving function, this given investment इतना, income level when saving will be 0, income level when saving is equal to. बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा. आपको क्या करना है? बस सेविंग फंक्शन देखो, गिवन है ना. आपको बोला इनकम लेवल when saving will be 0, तो s को क्या प्लॉट कर देना. तो सेविंग हमारी जब 0 है, s इज इक्वल टू 0, तो सिंपल सी बात है, सेविंग फंक्शन में यहाँ पे 0 प्लॉट कर दो. ठीक है. और इस वाले फंक्शन को कैसे कंप्यूट करना है देखिए. ये इक्वेशन लिखी. We know that when saving is 0, तो plot value of 0, ओहो हाँ, plot value of 0 प्लॉट कर दिया हमने. s को रिप्लेस बाय 0. फाइन. अब हमें क्या है? ये वैल्यू दे रखी है 500 माइनस प्लस इतना. y को उस तरफ ले जाओ और यू कैन से y को यहीं रखो और बाकी जितना है इन सबको उधर ले जाओ. पॉजिटिव बन जाएगा बिल्कुल. 500 डिवाइडेड बाय लिखो 500 डिवाइडेड बाय 0.2. जब आप उसको कैंसिल आउट करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 5000. नीचे कितना आ जाएगा? 2. कैंसिल ऑफ कर देना, कितना आ जाएगा? 2500. तो एट 0 लेवल ऑफ इनकम अगर हम रखें तो 0 लेवल ऑफ सेविंग रखें तो इक्विलिब्रियम लेवल पे इनकम कितनी बनेगी? 2500. फाइन. व्हेन लेवल ऑफ इनकम इज अब s इज इक्वल टू आई. सेविंग इज व्हेन लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो s इज इक्वल टू आई प्लॉट कर देना आज आप. फाइन. सो आज को आपको क्या करना है? यही सेविंग फंक्शन को प्लॉट रखना बेटा.
इसी सेविंग फंक्शन को रखना। अब आप देखो सेविंग हमें कितना गिवन है, इनने बोला कि सेविंग जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर है, ठीक है। लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग इज इक्वल टू, आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है आई, तो ये जो सेविंग फंक्शन था इसमें एस को रिप्लेस कर दोगे 100 से, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो रिप्लेस एस इज 100, तो 100 इज इक्वल टू वैल्यू प्लॉट कर दो, -500 प्लस 0.25, 500 को इधर ले जाओ, प्लस बन जाएगा 600, 600 इज इक्वल टू 0.25। जब वैल्यू प्लॉट करोगे मतलब मल्टीप्लाई करोगे, आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 300। हो गया सॉल्व, फाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको, प्लीज गो थ्रू करना बड़े इंपॉर्टेंटली तरीके से, ठीक है। तो बेटा इस वाले क्वेश्चन को बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से सुनना, फाइन। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन इकोनॉमी इज 5000 करोड़। आपको क्या गिवन है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यानी कि वाई गिवन है, फाइन। जब आपको ये चीज़ गिवन है तो आप लिखो 5000, ठीक है। ऑटोनोमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 250 करोड़, तो ऑटोनोमस कंजप्शन गिवन है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना गिवन है आपको, 1000 करोड़, दैट आई, ठीक है, ओके। कैलकुलेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। एक बात बताइए, जब हम क्वेश्चन गो थ्रू कर रहे हैं तो हमें इनकम गिवन है, बिल्कुल, हमें कंजप्शन पता लगाना है कि आखिर इस इनकम में से आपने कितने कंज्यूम किया। तो कंज्यूम हम ये बता सकते हैं कि इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई कंजप्शन को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि सपोज जितना आपने इनकम करी थी, कितनी थी, 5000 सॉरी, है ना, 5000, इनमें से जितना आपने सेव कर लिया, भाई जितना आपने सेविंग कर ली वो माइनस कर देना इनमें से। 5000 में से आपकी क्या निकल जाएगी, आपकी कंजप्शन निकल जाएगी, बिल्कुल सही। तो एक यही काम करते हैं हम। क्वेश्चन 28 गिवन व्हाट, हमें ये पता है y इज इक्वल टू कितना है, इतना, हमें ये गिवन है इन्वेस्टमेंट कितना है, 1000 करोड़। अब मैं ये वाली बात बोल सकता हूँ कि दैट s इज इक्वल टू आई होता है इक्विलिब्रियम लेवल पे, भाई जितना आई होगा उतनी s होगा, तो हेंस सेविंग कितनी हो गई, सेविंग विल बी 1000 करोड़, है ना। मैंने बोला कंजप्शन कितना होगा, फॉर्मूला प्लॉट करो, y माइनस s, तो c इज इक्वल टू y कितना है आपके पास, 5000 करोड़, s कितना आया 1000, तो c की वैल्यू कितनी निकली, 4000 करोड़, फाइन, इजी है, 4000 करोड़, इतना आ गया ये वाला पार्ट 4000। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। आगे बोलता है क्वेश्चन, सेकंड पार्ट बोलता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस। एमपीएस निकालने के लिए देखिए एमपीएस निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप बड़े आराम से एमपीएस निकाल सकते हो। अगर आपको कंजप्शन फंक्शन क्या क्या गिवन है, देखिए हमें ऑटोनोमस कंजप्शन गिवन है, बिल्कुल सही है। हमने वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू निकाल रखी है कंजप्शन की, बिल्कुल अभी निकालिए। कंजप्शन कितना है, देखो वैल्यू 4000, ऑटोनोमस गिवन है, बहुत आसान है। एक काम करते हैं, आप पहले कंजप्शन फंक्शन लिखना सीखो, सिखाया मैंने कंजप्शन फंक्शन, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखिए, कंजप्शन फंक्शन इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये लिखते हैं ना कंजप्शन फंक्शन को, तो है ना। सी बार क्या है, ऑटोनोमस, ये गिवन है आपको, कंजप्शन की वैल्यू आपने ऊपर निकाली है, तो रिप्लेस दिस सी बाय 4000 एज वी ऑलरेडी कंप्यूटेड अबव। ऑटोनोमस कंजप्शन इज गिवन, क्वेश्चन में चेक करोगे तो 250 इज गिवन, यस इट इज गिवन बाय ₹250 करोड़, प्लॉट की दीजिए यहाँ पे, प्लस बी इज व्हाट, एमपीसी, यही तो फाइंड आउट करना है अभी हमें। इसको हम रहने देते हैं, और इनकम कितनी है आपके पास, ये 5000 लिखिए, 5000 बी ऐसे लिख सकते हैं इसको, बी इज व्हाट, एमपीसी, ओके फाइन, एमपीसी है। कैलकुलेट करते हैं अब हम, ठीक है। तो इस 5000 को अभी टच नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ एक कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो इसको हम इधर ले जाते हैं, कितना आ जाएगा 3750, चलो मैं कर देता हूँ, 4000 माइनस 250 इज इक्वल टू 5000 बी, ठीक है। अब इसको करेंगे 3750 इज इक्वल टू 5000 बी, है ना, कोई दिक्कत। बी, इस बी को अब यहीं रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, b इज इक्वल टू 3750 अपॉन में क्या आ जाएगा 5000। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो b की वैल्यू कितनी निकलेगी 0.75, एंड दिस b इज नोन एज MPC, तो आई कैन राइट MPC इज इक्वल टू 0.75। बट इज दैट क्वेश्चन इज डिमांडिंग वी हैव टू कंप्यूट MPC, गो थ्रू इट। क्वेश्चन इज डिमांडिंग वी हैव टू कंप्यूट MPS। नाउ हाउ विल कंप्यूट MPS, वी नो दैट MPS इज इक्वल, हमें पता है MPS और MPC की वैल्यू 1 होती है, तो 1 में से इस MPC को माइनस कर दो 0.75, सो MPS की वैल्यू कितनी निकलेगी आपके पास 0.25 इज द वैल्यू ऑफ MPS। हमने ये भी कंप्यूट कर दिया, MPS भी कंप्यूट कर दिया आपने, फाइन।
अब आपने एमपीएस कंप्यूट कर दिया, ये याद रखना एमपीएस है ये, ठीक है। 0.75 4000 क्या था कंजप्शन की वैल्यू। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या डिमांड कर रहा है, क्या पूछ रहा है भैया हमसे। आगे क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट सेविंग फंक्शन। अरे बहुत आसान है बट सेविंग फंक्शन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक बार एक काम करो, सबसे पहले तो सेविंग फंक्शन लिखना सीखो। मैंने बताया भी आपको सेविंग फंक्शन कौन सा पार्ट था ये, 1 2 3 थर्ड है। तो थर्ड पॉइंट आपको पता होना चाहिए सेविंग फंक्शन कैसे लिखते हैं। अरे जैसे हम कंजप्शन फंक्शन लिखते हैं ऐसे सेविंग फंक्शन भी होता है। एस इज इक्वल टू क्या होता है, ऑटोनोमस, बट ये माइनस में होता है। जितना ऑटोनोमस होता है उतना ही सेविंग फंक्शन में ये माइनस में होती है, ठीक है। प्लस अगर मैं 1 में से बी को माइनस कर दूँ, एमपीसी को, बचेगा क्या, एमपीएस, और यहाँ पे इनकम लिख दो, हो गई ना। दो ये ऑटोनोमस, ये इंड्यूस, सेविंग, दोनों को इनको मिला के क्या बन जाती है मेरी ये चीज़, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए आपको वैल्यू कैसे प्लॉट करनी है। इतना आया तो बहुत आसान है आपको, भैया ये वैल्यू, सर ये वैल्यू तो गिवन नहीं है भाई हमें, कितनी 250 करोड़ है ना ऑटोनोमस कंजप्शन, यहाँ पे माइनस साइन लगा दो। आपने सीख ही लिया इतना तो, एस इज इक्वल टू -250। इन सब का रीज़न मैंने आपको बता रखा है। प्लस इधर क्या रिप्लेस कर देंगे, एमपीएस, सॉरी, तो एमपीएस आपने पहले निकाला था पीछे 0.25, रिप्लेस 0.25, वाई विल रिमेन वाई, हो गया सॉल्व। दिस इज व्हाट सेविंग फंक्शन इज इट क्लियर। द नेक्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अरे बहुत आसान है, आपके पास एमपीएस है, बड़ा आराम से पूछ सकते हैं। कहाँ पे, मल्टीप्लायर पे लिखिए, के इज इक्वल टू 1/MPS, है ना। एमपीएस पे कैलकुलेट कर दो। आज एमपीएस आपके पास है तो आप क्या लिखोगे, 1/0.25, की वैल्यू कर दो, इधर 0 ले जाओ, काट दो, की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, की वैल्यू 4 आ गई। ये भी सॉल्व कर दिया भाई हमने, ये तो बहुत आसान हो रहा है ना। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। मैंने लास्ट वीडियो में जितनी भी मैंने ब्रेक इवन पॉइंट आया और मैंने आपको वहीं पे बताया व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ब्रेक इवन। मैंने आपको इतना बार बताया कि आखिरकार ब्रेक इवन होता क्या है। तो आपको मैंने बताया कि ब्रेक इवन इज अ पॉइंट वेयर, 5th पॉइंट थी, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर, कौन सा पॉइंट होता है, जहां पे कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम, ये, और अब मैंने ये बोलता सेविंग विल बी 0, हैंस सेविंग विल बी 0, दिस इज द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। सी इज इक्वल टू वाई। फाइन। आज आपको एक बात बताओ कि चाहे मैं सी को रिप्लेस कर दूं वाई से या वाई को रिप्लेस कर दूं सी से, बात तो वही है, सेम पड़ेगी बिल्कुल। सो आज हम क्या करेंगे, द सी यानी कि कंजप्शन फंक्शन जो होता है का सी विल रिप्लेस विद वाई, वाई से रिप्लेस कर दो। याद करो मैंने सी पीछे लिखा था और उसके कंजप्शन फंक्शन एक ये इक्वेशन लिखी थी, याद थी क्वेश्चन के अंदर। नाउ उस सी को मैंने किससे, वाई से रिप्लेस कर दिया, उस सी को मैंने वाई से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो आज मैं ये चीज लिख सकता हूं, जो कंजप्शन फंक्शन था वो वाई है ना इज इक्वल टू क्या गिवन था, डेल्टा सी बार प्लस 0.0 ये पता नहीं है, वी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, देखो बी की वैल्यू कितनी निकाली, 0.75 इज एमपीसी, मैं यहाँ पे 0.75 लिख सकता हूँ, यहाँ पे था 250, वाई इज इक्वल टू 250 प्लस 0.75 वाई, ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं ना हम, लिख दीजिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 250 प्लस 0.75 y, ये वैल्यू लिख सकते हैं हम, रिप्लेस कर दिया मैंने, ये जो कंजप्शन फंक्शन मैंने कंप्यूट किया था ना पीछे, इज बीन रिप्लेसेस बाय y, बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट पे y इज इक्वल टू सी होता है, जो c गिवन था मैंने y लिख दिया उसकी जगह, बस y लिख दिया और बाकी इक्वेशन पूरी वही प्लॉट कर दी है। फाइन। आज इसको मैं यहाँ ले जाऊंगा, ये 1 होता है तो 1 में से 0.25 y माइनस कर दो इज इक्वल टू 250, यहाँ पे रखो, ये बच जाएगा कितना 0.75 y इज इक्वल टू 250, y को यहीं पे रखो, ये आ जाएगा कितना अपॉन 0.25 y, भाई ये 75 था तो 25 y बचा, ये रहा। इसको यहाँ पे अब कितना ले जाओगे, जब इसको करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। सो एट अ ब्रेक इवन पॉइंट आपकी इनकम लेवल कितनी होगी, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम लेवल होगी ₹1000 करोड़। फाइन। इज इट क्लियर टू यू बेटा, यू कैन ओनली डू और कंप्लीट दिस